بڑے بت پرست ہے, سب سے بڑے مورتی پجاری ہے, وہ کعبہ کو سجدہ کرتے اور کعبہ کی عبادت کرتے. کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں, آیت نمبر 144 میں, کہ ٹرن یور فیس ٹوورڈز دا سیکرڈ ماسک. آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لو. جب بھی آپ نماز پڑھتے ہو مسجد حرام کی طرف چہرہ کرو, سیکرڈ ماسک کی طرف. کعبہ ہمارا قبلہ ہے, اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں جماعت میں پڑھنا پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر نماز پڑھنا ہے آج ہمیں, تو کچھ لوگ کہیں گے دکشن کی طرف ہم رخ کریں گے, کچھ کہیں گے پشچم, کچھ کہیں گے پورب. ہم کس طرف دیکھیں گے؟ تو یونٹی کے لیے, یکسانیت کے لیے ہم کعبہ کی طرف دیکھ کے رخ کر کے نماز پڑھتے. اور مسلمان سب سے پہلے لوگ تھے جن نے دنیا کا نقشہ کیا. جب مسلمان دنیا کا نقشہ بناتے تھے تو ساؤتھ پول تھا نیچے, ساؤتھ پول تھا اوپر اور نارتھ پول تھا نیچے, اور کعبہ تھا بیچ میں. یہ ویسٹرن کارٹوگرافرز ہے اور میپ کو الٹا کیا, نقشے کو الٹا کیا, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. ماشاءاللہ کعبہ دنیا کے بیچ ہے. اگر آپ نارتھ میں تو ساؤتھ میں دشا کر کے نماز پڑھو, ساؤتھ میں تو نارتھ کو دیکھ کے نماز پڑھو, ویسٹ میں تو ایسٹ کی طرف, ایسٹ میں تو ویسٹ کی طرف. کعبہ دنیا کا سینٹر ہے. جب ہم عمرہ کے لیے جاتے یا حج کے لیے جاتے, ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم کعبہ کا طواف کریں. کعبہ کے ارد گرد ہم طواف کرنا ہمارے لیے فرض ہے. ہم طواف کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے. لیکن اگر ہم ذہنی طور پہ سوچے کیوں کرتے, تو یہ ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہر دائرے, ہر سائیکل کا, ہر سرکل کا ون سینٹر ہے, ہر دائرے کا ایک سینٹر ہے, ایک مرکز ہے. تو جب ہم طواف کرتے ہیں ہم شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور حضرت عمر کا قول جو ہے رضی اللہ عنہ, جو لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675, حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ کالا پتھر, حجر اسود کو دیکھ کے کہتے, یہ کالا پتھر نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے فائدہ, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اسے چومتے ہوئے, اسے ہاتھ لگاتے ہوئے, اسی لیے میں اسے چوم رہا ہوں, ہاتھ لگا رہا ہوں. تو یہ کہنا ہمارے دوسرے خلیفہ کا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, کہ یہ کالا پتھر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی بھی مسلمان یہ کالے پتھر کو نہیں پوچھتا ہے, کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے. اور اللہ کے رسول کے وقت کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کون انسان جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس مورتی پہ کبھی چڑھ سکتا ہے؟ جو بت کی پوجا کرتا ہے اس بت پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ صاف طور پہ ظاہر ہے کہ جب صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے, یہ ظاہر ہے کہ نہ ہم کعبہ کو پوچھتے ہیں نہ اس کی عبادت کرتے, وہ ہمارا قبلہ ہے, وہ نماز پڑھنے کی دشا ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور ایک شبہات کا جواب دوں گا, اور ایک غلط فہمی کو دور کروں گا, اور ایک عام سوال کا جواب دوں گا, اور 12واں عام سوال, 12واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق, وہ یہ ہے کہ اسلام اگر سارے انسانیت کے لیے ہے, سارے انسانوں کے لیے, تو صرف مسلمانوں کو کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ جانے کے لیے, غیر مسلمانوں کو کیوں ممانعت ہے مکہ اور مدینہ جانے سے؟ اس کا جواب ہے کہ ہر دیش میں کوئی کینٹونمنٹ ایریا ہوتی ہے. کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جو صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں, صرف وہ, ہر ناگرک نہیں جا سکتا, ایوری سٹیزن کی ناٹ گو. وہ ناگرک جو ملٹری میں ہیں یا دیش کی حفاظت کے لیے ہے
सिर्फ वो नागरिक जा सकता है, आम नागरिक नहीं। मैं नहीं कह सकता कि मैं इंडियन सिटीजन हूं इसलिए मैं कैंटोनमेंट एरिया में जाऊंगा, नहीं। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो उनको जाने की इजाजत है, गैर मुसलमानों को नहीं। और हर मुल्क में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत है। वीजा के बिना आप मुल्क में जा नहीं सकते। और हर मुल्क के अपने शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता है, जब मैं पहली बार गया था सिंगापुर में सन 1986 में, मैंने इमिग्रेशन फॉर्म पे देखा डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आपके पास ड्रग निकलता है, हासिल होता है, कत्ल। आप नहीं कह सकते सजा मौत, इतना बेरहम लॉ। आपको सिंगापुर जाने का लॉ में मानो, नहीं तो सिंगापुर में मत आओ। अमेरिका में जाने के लिए वीजा हासिल करना सबसे मुश्किल है। इतने सवालात की फहरिस्त है। अभी पूछते क्या आप टेररिस्ट है? आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? मैं जानना चाहता हूं कि लाखों लोग को वीजा किसने भी लिखा है कि हाँ, किसने भी लिखा है मैं, हाँ मैं टेररिस्ट हूं, मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं। क्यों ये पूछते हैं अल्लाह आलम, लेकिन ऐसे सवालात भी पूछते। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए सबसे अहम जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, सबसे अहम रिक्वायरमेंट मक्का मदीना जाने के लिए है कि वो इंसान को अपने जबान से कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ना सिर्फ एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। अगर ये वो मानते हैं फिर ही वो मक्का और मदीना जा सकते हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर वीजा टू गो टू मक्का और मदीना। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं मेरी तकरीर यहां ही खत्म करता हूं, ताकि गैर मुसलमानों के सवालात का जवाब दे सकूं मैं। और मैं तकरीर को खत्म करता हूं कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो जाएगा, और बातिल खत्म होने के लिए पैदा हुआ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राज हक बात कही जाएगी बेखौफ खतर, राज हक बात कही जाएगी बेखौफ खतर, रसनो दार से तुम हमको डराते क्यों हो। ये थे हक बात कहने वाले बेखौफ खतर डॉक्टर जाकिर नायक साहब, गैर मुस्लिमों के शुबहात का जवाब दे रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर जाकिर नायक साहब का जो सबसे मुअस्सिर और दिलचस्प सेशन होता है वो सवाल व जवाब का है। अब हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए चंद बातों का हर मुसलमान भाई और हर मुसलमान बहन के लिए लिहाज रखना ज़रूरी है। मैंने मुसलमान भाइयों और बहनों का नाम इसलिए लिया कि देखिए, मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, कि जो अल्लाह को और आखिरत के दिन को मानता है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। हम तमाम मुसलमान भाई और तमाम मुसलमान बहनें अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मेज़बान की हैसियत रखते हैं। हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम बहनें हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। हमारा अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को सवाल करने का मौका दें। मैं अपने गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा वो अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा जो है वो ज़रूर बताएं। सवाल छोटा करें। गैर मुस्लिम भाइयों को और बहनों को कोई भी सवाल जो इस्लाम से मुताल्लिक़ हो, गलत फहमी, वो डॉक्टर जाकिर साहब से कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी कोई फ़िक़ही सवाल न कीजिए, इख्तलाफ वाला सवाल न कीजिए। कोई ऐसा सवाल जो नामुनासिब हो तो उसे रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। आज के इस इजलास में 5 माइक का इंतज़ाम किया गया है। पहला माइक मेरे बाएं जानिब इधर भाइयों में, इसी तरीके से दूसरा भी भाइयों की जानिब शोबे में, और इसी तरीके से माइक नंबर 3 भी भाइयों के शोबे में है, और 2 माइक का इंतज़ाम बहनों के शोबे में, माइक नंबर 4 और माइक नंबर 5। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई माइक नंबर 1 में हो तो वो सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार जाकिर साहब।
मेरा नाम है राजेश्वर। मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूं और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं। तो मेरा ये कहना है, हम लोग जो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूं, सिख बोलता है मैं सिख हूं, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूं, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूंगा। बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। और क्या धर्म को, भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है? और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कौन कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये कितने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। आपका सवाल था किसने? इंसानों ने। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजा, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई, फिर नई मजहब, फिर और एक दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखे है सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरा 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू का क्या मानिए? हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी यह है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू।
یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لیے. تم اس لفظ کے اعتبار سے میں ہندو ہوں. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ہندو وہ ہے جو بت پرستی کرتا وہ غلط ہے. تو صحیح معنی ہندو کے میں ہندو ہوں. عیسائی کے